وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ ہماری گاڑی دلی شہر کے باہر شمال مغرب کی طرف نکل آئی۔ آزادی ملنے کے اتنے سالوں بعد بھی ابھی تک اس علاقے میں نئی کالونی نہیں بنی تھی۔ شہر کے قریب قریب کا علاقہ ضرور پھیل رہا تھا۔ ہماری دونوں جانب کبھی کھیت آ جاتے، کبھی ویران خشک میدان آ جاتے۔ آخر پرانے قلعے کا وہ کھنڈر آ گیا جس کے باہر راشٹریہ سیوک سنگھ کا ہندی میں لگا ہوا بورڈ تھا۔ گاڑی قلعے کے احاطے میں جا کر ایک جانب رک گئی۔ احاطے میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ قلعے کے بہت بڑے برآمدے میں سے ہوتے ہوئے رحیم بخش ایک کمرے کے باہر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ بوسیدہ تھا اور اس پر چک پڑی ہوئی تھی۔ رحیم بخش نے چپڑاسی سے کہا، صاحب سے کہو رحیم بخش آیا ہے۔ وہ چک اٹھا کر اندر چلا گیا۔ اندر سے کسی مرد کی بھاری آواز آئی، مہاشے رحیم بخش آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ کمرے میں ایک چوڑی میز کے پیچھے کرسی پر ایک بھاری بدن والا سانولے رنگ کا آدمی بیٹھا تھا جس نے زعفرانی رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دلی میں موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ لوہے کی 2 الماریاں کھڑی تھیں۔ وہ اٹھ کر رحیم بخش سے ملا۔ رحیم بخش نے اسے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کہا اور ادب سے کھڑا رہا۔ رحیم بخش نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، لکشمی دیال تمہاری فوج کے لیے ایک اور مسلمانوں کا دشمن لایا ہوں، لو اسے سنبھالو۔ کل میں نے اس کے بارے میں تم سے بات کی تھی۔ یہ مرلی پرساد ہے۔ لکشمی دیال اس ٹریننگ سینٹر کا ڈائریکٹر تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں ایک کمانڈو تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ رحیم بخش نے اس سے کہا، میں نے تو اپنی پوری تسلی کر لی ہے، اب تم بھی اپنی تسلی کر لو۔ اس کے ماتا پتا فسادات میں لاہور کی گوال منڈی کی آگ میں جل گئے تھے۔ یہ پاکستان کے مسلمانوں سے اپنے ماتا پتا کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کو بتاؤ کہ بدلہ کس طرح لینا ہے۔ لکشمی دیال کہنے لگا، مہاشے رحیم بخش جی، تم اسے لائے ہو تو تم نے اگر اپنی تسلی کر لی ہے تو سمجھو کہ میری تسلی ہو گئی ہے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ مرلی پرساد۔ گوت کیا ہے؟ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس سوال پر تھوڑا ضرور گھبرا جاتا، لیکن میں نے ہندو دھرم شاستروں کو پڑھا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی کاسٹ برہمن۔ ہاں برہمن ہو؟ جی ہاں۔ دلی میں کہاں رہتے ہو؟ اس کا جواب رحیم بخش نے دیا، ہمارے ایک بڑے اعتماد والے جماعت کے مسلمان دوست ہیں، یہ ان کے پاس رہتا ہے۔ کچھ دنوں سے یہ کسی ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ لکشمی دیال ڈائریکٹر نے مسلمان سے کہا، رحیم بھائی ہم ایسے ہی زہریلے اور پاکستان کے دشمن جوانوں کی ضرورت ہے، تم اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی چیکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ کانگریسی مسلمان نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا، میاں میں تمہیں لکشمی دیال کے حوالے کر رہا ہوں، اب ان پر ثابت کر دو کہ تم پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھگوان کی دیا سے ایسا ہی کر کے دکھاؤں گا، مگر دل میں کہا کہ ان لوگوں کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھیں گے۔ کانگریسی مسلمان مجھے اس ٹریننگ سینٹر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ لکشمی دیال نے مجھے ایک انسٹرکٹر کے حوالے کر دیا جس نے میرے بازوؤں کے پٹھوں کو ٹٹول کر دیکھا۔ تم تو باڈی بلڈر لگتے ہو۔ میں نے ہندوؤں والی مکارانہ عاجزی سے کہا، جی مجھے کسرت کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایسے ہی جوان چاہیے، مگر تمہارے دماغ میں چالاکی بھی ہونی چاہیے۔ اگر چالاکی نہیں ہوگی تو میں اس میں ڈال دوں گا۔ چلو۔ وہ مجھے قلعے کی ایک بیرک میں لے گیا جہاں پہلے سے 4 جوان فزیکل ٹریننگ کر رہے تھے۔ انہوں نے نکریں اور ٹی شرٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ میرے ہندو انسٹرکٹر کا نام کالی داس تھا۔ وہ کالے رنگ کا تھا، آنکھیں پیلی تھیں، شکل ہی سے عیار اور مکار لگتا تھا۔ اس نے ان 4 جوانوں سے میرا تعارف کروایا۔ ان کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان تھیں۔ یہ چاروں ہندو تھے اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے آدمی تھے۔ انہیں پاکستان میں جا کر تخریب کاری کی تربیت دی جا رہی تھی۔ دوسرے دن سے میری بھی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ کمانڈو ٹائپ کی ٹریننگ ہوگی، دوڑیں لگوائی جائیں گی، دشمن پر پیچھے سے ایک دم حملہ کرنے اور چاقو چلانے کی تربیت دی جائے گی، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ صرف جسمانی ورزش دن میں 1 گھنٹہ ضرور کرائی جاتی۔ زیادہ زور بم لگانے اور بم لگانے کے بعد وہاں سے کس طرح فرار ہونا ہے اس پر دیا جاتا۔ میرے لیے یہ معمولی بات تھی۔ 1 گھنٹہ خود اسلحہ چلانے اور نشانہ بازی سکھائی جاتی۔ میں پہلے ہی ان تمام چیزوں میں ماہر تھا۔ 3 دن میں ہی انسٹرکٹر کالی داس کو معلوم ہو گیا کہ میں بڑا ہونہار تخریب کار ہوں۔ میرا نشانہ ٹارگٹ پر بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ میں نہ صرف طے شدہ وقت میں پٹاخہ بم، نقلی پل اور نقلی عمارت کے اندر لگا آتا، بلکہ اس طریقے سے بم لگا کر وہاں سے فرار ہوتا کہ خود کالی داس کو بھی 1 منٹ تک پتہ نہ چلتا کہ میں کس طرف فرار ہوا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ٹریننگ کے 15 دن بعد ہی لکشمی دیال سے میری سفارش کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ مجھے تخریب کاروں کی ٹیم کا ہیڈ بنا دیا جائے۔ ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ میں ایک اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو ہوں۔ میں نے دست بدست فائٹ میں بھی وہ کمال دکھایا کہ کالی داس حیران ہو گیا۔ کہنے لگا، مرلی پرساد اگر مجھے تم جیسے 12 جوان مل جائیں تو میں پاکستان میں تباہی مچا سکتا ہوں۔
मैंने दिल में कहा, तबाही तो मैं तुम्हारे हिंदुस्तान में मचाऊंगा, पाकिस्तान का तो तुम बाल भी बीका न कर सकोगे। ऊपर से कहा, सर आपका धन्यवाद। रात को खाने के बाद कालिदास हमें पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ आधे घंटे का एक जहरीला लेक्चर देता। मुसलमानों, इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ वो ऐसी ऐसी जहरीली बातें करता कि मेरा इस बात पर यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि पाकिस्तान का क़याम मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी था। जब हमारी ट्रेनिंग को 1 महीना गुजर गया तो हमें तखरीबकारी की मुहिम पर जाने का हुक्म मिल गया। इस दौरान मैंने इस बात की तस्दीक कर ली थी कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान तखरीबकार नहीं है। वहाँ सिर्फ एक हिंदू तखरीबकार उनका जासूस है जिसने हमें इंडिया पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर पर मिलना था और हमें बॉर्डर पार करवा कर साथ ले जाना था, और आगे हम 5 तखरीबकारों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बमों के धमाके करने भेजना था। जिस रोज हमें ट्रेनिंग सेंटर से अपने मिशन पर रवाना होना था, उस दिन हमें लक्ष्मी दयाल ने खुद एक लेक्चर दिया और कहा, तुम लोग यहाँ से जम्मू तवी जाओगे, वहाँ से हमारा खास आदमी तुम्हारे साथ तुम्हें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। असलहा और टाइम बम तुम्हें हमारा आदमी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद देगा। उसके पास टाइम बमों और असलहे का जखीरा मौजूद है। तुम लोग पाकिस्तान के शहरों में रेलवे पुलों को बम लगा कर उड़ाओ, लारियों, बसों, रेलवे ट्रेनों और सिनेमा की इमारतों में बम के धमाके करो। हमारा जो आदमी तुम्हें जम्मू में मिलेगा, हम तुम्हें उसका असली नाम नहीं बताएंगे, उसका फर्जी नाम जैक होगा। फिर लक्ष्मी दयाल ने मेरी तरफ देख कर कहा, तुम्हारे पार्टी लीडर मुरली प्रसाद को जैक की तस्वीर दिखा दी गई है। जैक को वायरलेस पर तुम्हारे आने की इत्तला कर दी गई है। तुम कल सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से अलग अलग होकर ट्रेन के जरिए जम्मू जाओगे। जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा पार्टी लीडर मुरली प्रसाद तुम्हें एक जगह बिठाकर खुद पंजाब होटल जाएगा, जहाँ जैक से उसकी मुलाकात होगी। उसके बाद जैक तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अब तुम जाकर अपने मिशन पर रवाना होने की तैयारियां शुरू कर दो। तुम अपने साथ कोई फालतू जोड़ा नहीं ले जाओगे, सिर्फ पतलून और जैकेट पहनकर जाओगे। क्लास डिसमिस। चारों तखरीबकार हिंदू उठकर चले गए। लक्ष्मी दयाल और इंस्ट्रक्टर कालिदास मुझे एक कमरे में ले गए। यहाँ लक्ष्मी दयाल डायरेक्टर ने मुझे जैक के फर्जी नाम वाले हिंदू तखरीबकारों की फोटो दिखाई। उसका असली नाम तुम्हें भी नहीं बताया जाएगा, इसकी शक्ल दिमाग में बिठा लो। ये जैक है। ये तुम्हें जम्मू शहर के पंजाब होटल के कमरा नंबर 9 में मिलेगा। इसे मिलने के बाद तुम वही करोगे जिस तरह वो कहेगा। समझ गए? मैंने कहा, यस सर। ओके, कल सुबह मुंह अंधेरे कालिदास तुम्हें लेकर स्टेशन की तरफ रवाना होगा। अब तुम जाकर तैयारी करो। कले में पुराने हुजरे बने हुए थे, उनको लकड़ी के तख्ते लगाकर छोटे कमरों में बदल दिया गया था। एक कमरा मुझे मिला हुआ था। मैं कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। इस दौरान मुझे सिर्फ एक बार शहर दिल्ली जाने का मौका मिला और मैंने गुल खान से एक खुफिया मुलाकात की थी और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया था। उसने मुझसे एक ही बात पूछी थी, तुम इन लोगों के साथ क्या सलूक करने वाले हो? मैंने कहा, ये मैं अभी खुद भी नहीं जानता। इतना जरूर है कि इनमें से कोई एक तखरीबकार भी अपने मिशन में कामयाब ना हो सकेगा। कोई एक भी पाकिस्तान के किसी शहर में बम का धमाका न कर सकेगा। क्या तुम इन्हें मार डालोगे? अगर ऐसा कर बैठे तो यहाँ लक्ष्मी दयाल को तुम पर जरूर शक पड़ जाएगा कि तुम पाकिस्तान के आदमी हो। इस तरह हो सकता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि तुम्हें रहीम बख्श के पास मैं लेकर गया था। रहीम बख्श को तो पुलिस पकड़ेगी नहीं, ये सोच लेना। मैंने कहा, खान भाई तुम इसकी फिक्र न करो, मैं कोई ऐसा मंसूबा बनाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। गुल खान बोला, मुझे तुम पर एतमाद है। बहरहाल अगर कोई ऐसी वैसी बात भी हो गई हो तो मैं अपना बचाव करना जानता हूँ। जहाँ दिल्ली में मेरे कांग्रेसी लीडरों से खास ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात मैंने इसीलिए बनाए हुए हैं कि अगर कभी कोई बात हो जाए तो मुझ पर कोई शक न कर सके। तुम जो करोगे ठीक करोगे। मैं तुम्हारी सलामती और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो रहूंगा। मैंने गुल खान से कहा, इस मिशन पर मुझे तुम्हारे धमाका खेज च्युइंगम बमों की बजाय धमाका खेज महलूल की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस महलूल की थोड़ी सी मिकदार बना कर दे दो। गुल खान उठकर अंदर चला गया। उस वक्त मैं उसके अपने मकान में बैठा हुआ था। अंदर से एक नीले रंग की शीशी लाकर उसने मुझे दिखाई और कहा, यह धमाका खेज महलूल मैंने पहले से तैयार करके रखा था। मुझे मालूम था कि इस मिशन पर तुम्हें इसकी जरूरत होगी। उसने एक छोटी सी काले रंग की शीशी में धमाका खेज महलूल डालकर उसका पेचदार ढक्कन बंद किया और शीशी लिफाफे में लपेट कर मुझे देते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सिर्फ मैंने इसका टाइम बढ़ा दिया है। कितना टाइम बढ़ाया है? गुल खान ने जवाब दिया, पहले 5 मिनट का वक्फा होता था, अब इसे बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया है। इस महलूल का सिर्फ एक कतरा पानी, शराब या चाय में डालकर दुश्मन को पिला दोगे तो 10 मिनट के बाद उसकी आंखें सुर्ख होकर उबल पड़ेंगी। उसके साथ ही उसके जिस्म धमाके से फट जाएगा। इसे संभाल कर रखना। मैंने शीशी लेकर जेब में रख ली और जिस वक्त तकरीबकारी के ट्रेनिंग सेंटर में लक्ष्मी दयाल डायरेक्टर हमें पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जहरीला लेक्चर दे रहा था,
इस धमाका खेज महलूल की शीशी मेरी जेब में मौजूद थी। उस वक्त मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि इस मिशन से वापस आकर मैं पाकिस्तान दुश्मन लक्ष्मी दयाल और ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर कालिदास को ये धमाका खेज महलूल जरूर चखाऊंगा, ताकि वो भी इस जायके से थोड़ा वाकिफ हो जाएं। सुबह सुबह कालिदास हमें ट्रेनिंग सेंटर के किले से निकालकर एक पुरानी जीप में बिठाकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हम पांचों तकरीबकार पुरानी पतलूनों और मामूली सी जैकेटों में मलबूस खामोशी से जीप में आमने सामने सर झुकाए बैठे थे। अभी दिन नहीं निकला था। दिल्ली की सड़कों पर बिजली की बत्तियां रोशन थीं। हमें जम्मू तवी एक्सप्रेस पकड़नी थी। ये ट्रेन उस जमाने में दिल्ली से सुबह 6:15 बजे चलती थी। कालिदास ने हमें 3rd क्लास के 5 टिकट लेकर दिए और कहा, तुम लोग अलग अलग डिब्बों में बैठोगे, मगर एक दूसरे को अपनी निगाह में रखोगे। सिर्फ जम्मू तवी के स्टेशन के बाहर तुम एक जगह इकट्ठे होगे, जहां जैक आकर तुम में शामिल हो जाएगा। उसने मुझसे कहा, मुरली प्रसाद, जम्मू तक ये लोग तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तुम इनके पार्टी लीडर हो। जम्मू से आगे जैक तुम्हारा पार्टी लीडर होगा। मैंने कहा, ओके सर। कालिदास ने टिकट हमारे हवाले किया और कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैंने दिल में कहा, भगवान तो तुम्हारी रक्षा करेगा और ऐसी करेगा कि किसी ने न की होगी। ऊपर से कहा, थैंक यू सर। कालिदास ने आहिस्ता से कहा, जय हिंद। हमने भी मुंह ही मुंह में ये अल्फाज दोहराए। मैंने बड़ी मुश्किल से ये दोनों अल्फाज अदा किए। हम प्लेटफॉर्म पर आकर अलग अलग हो गए। अलग होने से पहले मैंने चारों हिंदू तकरीबकारों से कहा, जम्मू तवी के स्टेशन के बाहर मुलाकात होगी, लेकिन मैं रास्ते में उतरकर तुम लोगों का दूर से हालचाल मालूम कर लिया करूंगा। मैंने जब देखा कि चारों तकरीबकार ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में दाखिल हो गए, तो मैं भी एक डिब्बे में घुस गया। ट्रेन ठीक वक्त पर जम्मू तवी के लिए रवाना हो गई। ये सफर काफी लंबा था। मैंने जब देखा कि चारों तकरीबकार ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में दाखिल हो गए हैं, तो मैं भी एक डिब्बे में घुस गया। ट्रेन ठीक वक्त पर जम्मू तवी के लिए रवाना हो गई। ये सफर काफी लंबा था। ट्रेन दिल्ली से वाया सोनीपत करनाल होती हुई जालिंधर जाती थी। जालिंधर से ये होशियारपुर की तरफ लाइन बदल लेती थी। सारा दिन सफर जारी रहा। इस दौरान मैं रास्ते में सोनीपत, करनाल और अंबाला के स्टेशनों पर उतरकर अपने तकरीबकार आदमियों को दूर से देखता रहा। वो लोग बड़े इत्मीनान से बैठे थे। शाम के वक्त जालिंधर आया, जहां से ट्रेन ने रेलवे ट्रैक बदला और आगे अमृतसर जाने की बजाय होशियारपुर की तरफ रवाना हो गई। होशियारपुर से आगे बड़ा स्टेशन जम्मू तवी का ही था। रात के 8 सवा 8 बज रहे थे कि ट्रेन ने हमें जम्मू तवी पहुंचा दिया। हम एक एक करके अलग अलग होकर स्टेशन से बाहर निकल आए। हमने एक दूसरे को अपनी निगाहों में रखा हुआ था। मैं उनके आगे आगे था। मैं एक जगह अंधेरे में खड़ा हो गया। प्रोग्राम के मुताबिक चारों हिंदू तकरीबकार मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें कहा, हमारा टारगेट पंजाब होटल है। हम अलग अलग इस होटल के कमरा नंबर 9 में जाएंगे। ओके, सबने दबी जबान से यस सर कहा और हम एक बार फिर अलग अलग हो गए। मैं इससे पहले जम्मू तवी आ चुका था। मेरे लिए ये शहर नया नहीं था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और इसे पंजाब होटल चलने को कहा। पंजाब होटल दरमियाने दर्जे का 2 मंजिला होटल था। मैंने कमरा नंबर 9 का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, दिल्ली से आपका एक मेहमान आया है। दरवाजा खुल गया। मेरे सामने दरमियाने कद का गठे हुए जिस्म वाला एक पक्की उम्र का आदमी खड़ा मुझे घूर रहा था। कौन हो तुम? मैंने कालिदास को बताया हुआ कोड वर्ड दोहराया तो वो आदमी दरवाजे से पीछे हट गया और बोला, अंदर आ जाओ, मेरा नाम जैक है। कमरा बेतरतीब चीजों से भरा हुआ था। उसने कुर्सी से चादर उठाते हुए कहा, बैठ जाओ। बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा, वो अलग अलग करके आएंगे। जैक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम नए रंगरूट लगते हो। क्या तुम पार्टी लीडर हो? मैंने कहा, हाँ मेरा नाम मुरली प्रसाद है। जैक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे कालिदास ने तुम्हारा रिकॉर्ड भिजवा दिया था। तुम्हारे माता पिता ग्वाल मंडी की आग में जलकर स्वर्गवास हो गए थे, है ना? जी सर। ठीक है, तुम लाहौर जाओगे और ग्वाल मंडी के अंदर किसी बड़ी दुकान में इकट्ठे 2 बम लगाकर धमाका करोगे। तुम्हें इससे जरूर खुशी होगी। क्यों नहीं? मैं तो मुसलमानों से अपने माता पिता की मृत्युओं का बदला लेना चाहता हूँ। इससे अच्छी और कौन सी बात होगी कि जहाँ मेरे माता पिता को जलाया गया था, वहीं मैं अपने दुश्मन को भस्म करूँ। जैक इस दौरान मेरी तरफ मुसलसल घूर कर देख रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरे चेहरे के पीछे छुपे हुए किसी राज को तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने दिल में कहा कि तुम क्या तुम्हारे वालिद साहब भी इस राज को मालूम नहीं कर सकते जो मेरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ है। आधे घंटे के अंदर अंदर एक एक करके बाकी तकरीबकार साथी भी आ गए। हमने मिलकर खाना खाया। खाना हिंदुओं वाला था, यानी दाल और छोटी छोटी रोटियां, बल्कि चपातियां और मोटे चावल और दही। मुझे दिल में गुलखान के साथ खाए हुए मुर्ग रोस्ट याद आ रहे थे। खाने के बाद चाय आ गई। मैंने पार्टी लीडर की हैसियत से जैक से पूछा, सर यहाँ से हमें किस वक्त निकलना है? जैक ने मुझे एक बार फिर घूर कर देखा। साफ लग रहा था कि किसी वजह से मैंने उसे पसंद नहीं आया। कहने लगा, तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद बता दूंगा। अब तुम पार्टी लीडर नहीं हो, अब तुम्हारा लीडर मैं हूँ। आगे मेरा हुक्म चलेगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। मैंने कहा, यस सर, जैसी आपकी आज्ञा।
पार्टी लीडर जैक, जो शक्ल सूरत से और बातों से अपने जहरीले रवैये से भी बड़ा सख्त मुतासिब हिंदू लगता था, हम सबको एक साथ मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोग आज रात और कल का दिन आराम करोगे। कल अंधेरा होते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। कल का सारा दिन मेरी इजाजत के बगैर कोई होटल से बाहर नहीं जाएगा। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, जहाँ दुश्मन के जासूस हमें देख सकते हैं। रात को हम एक ही कमरे में जमीन पर चादरें लेकर लेट गए। मैंने सोचा कि इस आदमी जैक से, जिसका असली हिंदुआना नाम मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका, इसके साथ जितनी ज्यादा दोस्ती डाली जा सकती है डालकर इससे ये पता करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू जासूस तखरीबकार बैठा हुआ है और जिसके साथ वहां जाकर हमने राब्ता पैदा करना है, उसका नाम क्या है और वो पाकिस्तान के किस शहर में किस खुफिया नाम और भेस में रह रहा है। जाहिर है कि वो मुसलमान बनकर ही पाकिस्तान में रह रहा होगा। ये इत्तलात मुझे जैक से ही मिल सकती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं इस इंडियन तखरीबकार को भी उन तखरीबकारों के साथ ही हलाक करना चाहता था। अगर मैं इन चारों को हलाक करके उस तखरीबकार की तलाश में पाकिस्तान में दाखिल हो गया तो मैं उसे वहां जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मगर फिर मेरे लिए वापस इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी हुकूमत का जासूस तो था नहीं। मैं तो ये सारी कार्रवाइयां महज अपने बलबूते पर और अपने बाप की वसीयत पूरी करने के लिए, और मेरे दिल में इस्लाम, जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का जो जज्बा था, सिर्फ उसकी वजह से कर रहा था। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में मुकीम हिंदू तखरीबकार का कम से कम पता लग जाना चाहिए, फिर मैं किसी दूसरे तरीके से उसे वहीं गिरफ्तार करवाने या खत्म करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने जैक के साथ हद से ज्यादा खुशामदाना रवैया इख्तियार कर लिया। खुद उसको चाय बना कर दी। वो सिगरेट सुलगाने लगा तो मैंने जल्दी से माचिस जलाकर उसके सिगरेट को सुलगा दिया। खुशामद बड़ा खतरनाक हथियार है, ये पत्थर में भी सुराख कर देता है। मेरे खुशामदाना रवैये ने बड़ी जल्दी असर दिखाना शुरू कर दिया। जैक की तवज्जो मेरी तरफ होने लगी। वो हमसे कोई बात कर रहा होता या हमें कुछ समझा रहा होता तो मेरी तरफ तवज्जो ज्यादा देता। मैंने उस पर मजीद असर डालने के लिए मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बड़े कम अरसे में यकीन दिला दिया कि मैं एक कट्टर ब्राह्मण हिंदू हूँ और मेरे दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने फर्जी माता पिता के जल मरने का बदला लेने की आग भड़क रही है। रात के पहले पहर जब हमारे दूसरे साथी सो गए तो मैं उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती जल रही थी। जैक कोने वाली छोटी मेज पर एक नक्शा रखे उसको झुक कर देख रहा था। मैंने सिगरेट जलाया तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नींद नहीं आ रही मुरली प्रसाद? मैंने कहा, भापा जी, जब तक मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने स्वर्गवासी माता पिता के खून का बदला न ले लूं, मुझे नींद नहीं आ सकती। जैक ने नक्शा तह करके प्लास्टिक के लिफाफे में डालते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें इसका मौका मिलने वाला है। तुम्हें अपने पुराने मोहल्ले ग्वालमंडी में किसी दुकान में ही बम लगाने होंगे। तुम्हारा घर ग्वालमंडी में ही था ना? हाँ, ग्वालमंडी की आग में ही जल मरे थे। जैक ने भी सिगरेट सुलगाया और कुर्सी पर बैठे बैठे अपना रुख मेरी तरफ कर लिया। तुमने पहले कभी बम लगाए हैं? मैंने अनजान बनते हुए कहा, ये काम मैंने पहले तो कभी नहीं किया, मगर चिंता न करें, ये काम मैं बड़ी होशियारी से करूंगा। बस तुम्हें बमों वाला ब्रीफकेस ग्वालमंडी की किसी दुकान में ले जाकर किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां आते जाते किसी की नजर न पड़े। मुझे लाहौर वाले हिंदू तखरीबकार के बारे में बात करने का मौका मिल गया। मैंने जैक से पूछा, क्या लाहौर में हमें अपना लाहौर वाला जासूस गाइड करेगा? हाँ, वही करेगा। मैंने पूछा, वो हमें लाहौर में ही मिलेगा क्या? जैक ने हल्का सा कश लगाकर कहा, नहीं, वो हमें बॉर्डर क्रॉस करा के इंडिया के एक गांव में मिलेगा। उसको इत्तला मिल चुकी है। जिस वक्त हम वहां पहुंचेंगे वो वहां मौजूद होगा। मैंने ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान में इन लोगों ने और कौन कौन से हिंदू तखरीबकार कहां कहां तैनात कर रखे हैं, जैक से कहा, मैं तो कहूंगा भापा जी के हमें पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे में अपने आदमी रखने चाहिए जो हर रोज बम का एक एक धमाका करें। जैक खामोश रहा। मैंने मौका मुनासिब जानकर वो सवाल कर दिया जो हकीकत में पूछना चाहता था। भापा जी, इस वक्त पाकिस्तान में हमारे भगवान की कृपा से कितने आदमी काम कर रहे हैं? जैक मेरे जाल में आ गया। कहने लगा, इस वक्त तो यही नंदलाल एक ही आदमी लाहौर में है, मगर हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के हर शहर में अपने अगरवादी जासूस रखने का है। मेरे खुशामदाना सलूक ने उस हिंदू तखरीबकार जैक की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने मुझे पाकिस्तान में काम करने वाले तखरीबकार हिंदू का नाम बता दिया था। मैंने ये जाहिर करने के लिए कि मुझे इस मौजू से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं, जल्दी से बात का मौजू ही बदल दिया और उससे कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी तो बहुत होगी, हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे ना? जैक ने जवाब में हल्की सी जमाई ली और कहा कि नंदलाल तुम लोगों को ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस कराएगा जहां कोई खतरा नहीं होगा। वो पहले भी हमारे आदमी बॉर्डर पार करवाता रहा है। फिर ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बड़े इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा। जैक कुर्सी से उठकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। ये जम्मू शहर की खुनक थी। मैं पहले भी इस शहर में आता जाता रहा था। सर्दियों का मौसम निकल रहा था। जम्मू की रात हल्की खुनक थी, इतनी के कमरे का पंखा नहीं चल रहा था। थोड़ी देर में हमारे हिंदू तखरीबकार गाइड जैक के खर्राटों की आवाज आने लगी।
मेरी पतलून की जेब में धमाका खेज महलूल की काली शीशी मौजूद थी। मैं इन सब की एक एक करके गर्दनें तोड़कर इन्हें मौत की नींद सुला सकता था, मगर मुझे इस हिंदू तखरीबकार नंदलाल को भी हलाक करना था, जिसको भारतीय खुफिया रॉ ने लाहौर में तखरीबकारी के लिए रखा हुआ था। और नंदलाल ने हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया की सरजमीन पर वाक़े एक सरहदी गांव में मिलना था। उस वक्त तक इन लोगों का जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि इनके साथ ही मैं नंदलाल से मुलाकात कर सकता था। चुनाचे मैं दिल में मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करने लगा कि इंडिया के सरहदी गांव में नंदलाल समेत इन सबको एक ही वक्त में किस तरह हलाक किया जा सकता है, और उसके बाद क्या मैं वापस इन लोगों के पास जा सकूंगा जिन्होंने मुझे हिंदू समझकर पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए भेजा था, जबकि मजीद तखरीबकारी के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए मेरा उनके पास वापस जाना जरूरी था। यही कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।